Hello, viewers and listeners. I welcome you to the program on BA Psychology Honours program that has been launched in January 2020. And at the outset, I would like to welcome you all to this program and being a part of the world's biggest universities. IGNOU has a larger social mandate and it caters to all the sections of the society by providing a quality education. In this program, I will be discussing the scheme of study and the program structure related to the program, BA Honours program in psychology. And I conducted a session on 3rd of April for the BA General program, and since then I have been receiving many queries with regard to the Honours program. It is really interesting to know that across India, the learners have formed groups on various platforms and they are well connected, and I have been receiving many queries with regard to the assignments, term and examinations, tutorials, practical and so on. And that definitely I have tried in fact to cover all your queries in this program. So now let us start with how the system works here, because there are definite roles what as a learner you have to play, what is the role of the academic counselor, and what is the role of the faculty here. And all the three all the three sections are very important in fact. Now the delivery of the program is like this. We have the university, Indira Gandhi National Open University, then we have the regional centers, and you have the learner support centers or the study centers. So the university, Indira Gandhi National Open University, is a central university which was established in 1985 by the Act of Parliament, and the campus is in New Delhi. The regional centers I just mentioned that they are spread across India, and primarily they are located in all the capital cities, plus the larger states, for example, Uttar Pradesh, Maharashtra, Gujarat, then of course, as per the geographical spread, Kerala, then of course Madhya Pradesh. So we have more than one regional center in these states because of the area, and accordingly the districts are divided, and then we have the of course under those regional centers we have the study centers. So coming back to this, IGNOU is a central university, and we have around 21 schools of studies, and one is the School of Social Sciences, one of the oldest schools. And in the School of Social Sciences, we have the discipline of psychology, right? The discipline was established in 2010, and at present, the programs on offer are BAG that started in July 19. We have BAPCH, that is the Honours program to which we are talking about. It was launched in January 2020. Then we have postgraduate diploma in mental health. That of course we started in July 2017, and it is once a year. Then we have Master of Arts in Psychology. That also we started in 2010. Then of course we have PhD, but that in regular mode. We started in 2012. The faculty members are, they are in the campus, Professor Swati Patra, Professor Suhas Shetgovekar, Dr. Smita Gupta, and myself, Dr. Monica Mishra. This is, I'm telling you, the genesis of the discipline, how it came about. And the faculty members are important because we are all developing the courses, be it the general program or the Honours program, and we have opted for some other courses also from various disciplines like public administration, sociology, and so on. So we have a basket kind of a thing, and the faculty members, not only from psychology but from various disciplines, are contributing to provide you a quality course material. So this is the role. So as a distance learner, there is also a lot of responsibility on your shoulders. At this, when we are into digital learning and supposedly a digital age, you cannot say that I don't know, because now everything is on the net, of course, provided the internet connection is there. The material, the information, everything is there on the net. You have to be
little bit responsible in reading the material, whatever the information is there on the website and so on, the regional center website, the university website and so on, properly. You have to go through the course materials also very carefully, because we have spelled it out very carefully, right? So the role of a distance learner is also very important. As a faculty, our responsibility is to provide you good content in the study material. The faculty members ensure that the material is precise, comprehensive, and you can comprehend it well. We try to ensure that. And the academic counselors who are at the learner support centers, they are the tutors or the counselors. They also try to ensure that you are able to understand the course material. So this is the genesis of the discipline. This I am referring here as the bachelor's degree, just to the programs. Why I'm referring here is because I have received certain queries regarding the confusion, because bachelor's degree program is the old BA program that was launched in 2010 July, right? We have the Bachelor of Arts General program that was launched in July 2019, and now we have the honors program from January 2020. Mind you, the courses in all these programs have different codes, right? The BDP program has different codes. The we have certain codes for all the courses. It is different. BAG courses are different. If you see the program guide, that is why I tell you to, I suggest, in fact, to read the program guide very carefully, where we have explained the scheme of study very, in a way that you can comprehend it properly, right? So you just ensure that you are going for the right course code, whatever the course code is there in your program. That is why I'm referring to this, because I received few queries that they were referring to the courses of the BDP program, which is of course not applicable to you all, because here the courses are like, for example, we'll just see, but I'm just referring it. For example, it is like BPCC 101, 102 and so on. While as if you see the old pattern, we have BPC 001, 002. I'll come to that also. How can they be useful for you? So this is, and for the BAG, like we have the course codes like BPCC is 131, 132 and so on. So you have to be very careful while you are downloading the material, while you are downloading the content. And even from the app also, the IGNOU e-content app, you have to be very careful what you are downloading, right? Well, of course, no knowledge goes waste, but your whatever you are doing, it should not go into waste. Now let us start with the program details. The eligibility is of course 10+2. You have already enrolled for the program, and maybe for the potential learners or your friends who want to enroll for the program, the eligibility is 10+2, and right now at present we are offering in 2 languages, English and Hindi. The duration is of 3 years, maximum to 6 years. Now you should try to complete it within time, that is 3 years, right? This is the 6 years we have given maximum time, so that just in case you are not able to complete the courses, because your program will be complete only once you have completed all the courses. All the courses you have completed, then only the program you will be able to get a degree. So try to try to complete it within 3 years. Of course, the university is facilitating you in your academic endeavor, so we have given like up to 6 years, plus you get 2 years additional, where whatever the leftover courses you can do, you can complete at the pro rata basis, that is that much of credit, and the fees only that much you have to pay. Now these are all the details are there in the common prospectus also and on the website. A fee structure, if we see, it is for the BA Honours program, it is little different from the other programs. It is 3,200, that is the average fees, plus you have 600 extra that has to be given for the practical. So every year you need to pay 600 extra.
maybe in the first year when you were registering for the program, for the few of the learners it might have happened that the 600 has not been paid. So at some point of time it might be you may be asked to pay the requisite amount, because this is for the practical component and this is mandatory. Then we have the self-learning material. This is very important, and in fact, as per the queries, I have received very less queries on the learning material. So, since I have not received much queries on the learning material, I assume that they are fine and I'm not getting any feedback. As the learners are more anxious about the assignment, about the exam and so on. I think we'll come on to that part later, because there is nothing to be so much anxious about, because the first step is to read the self-learning material. Then only the assignments come. When the material is not uploaded, how will you do the assignments? Now, of course, the material is loaded. You go through the learning material properly and carefully. Mark it out where you are not able to understand. And then try to, you can always refer to other textbooks also. Because now I presume that since you have gone for the honors program, I presume that most of you will be opting psychology as a career, or some way or the other you will be doing something related to the psychology discipline. So I presume that for that you need to refer textbooks which are available in open resources. You can always access them. This is because, see, our study material, we have certain limitations that we have to be very concise and comprehensive. That is the base of our program. You have to refer that, no doubt about it. But nevertheless, since you have to be, what is the latest going on, because in psychology per se, I believe that lot many changes are happening, lot many researches are taking place. तो साइकोलॉजी में आपको क्या इस समय हो रहा है पूरे, मतलब स्पेशली जैसे फॉर एग्जांपल इन बायो साइकोलॉजी एक आपका कोर्स है, आपका एक कोर्स है सोशल साइकोलॉजी जिसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स वर्ल्ड ओवर भी हो रहे हैं. कोग्निटिव साइकोलॉजी का डोमेन है जो कि आपका 101 है, जनरल साइकोलॉजी. लॉट मेनी रिसर्चेस आर बीइंग दे आर बीइंग कंडक्टेड. सो टू कीप योरसेल्फ अब्रेस्ट कि क्या हो रहा है साइकोलॉजी फील्ड में, I would suggest that you can always refer to the open resources that are available and जो कि आप इस समय access भी कर सकते हैं, and अपने और अपना जो answers हैं उनको और अच्छे से आप और लिख सकते हैं. Try to form groups. There should not be between the digital haves and the have-nots. ये गैप नहीं होना चाहिए इन द सेंस कि बहुत लोग हमारे जो लर्नर्स हैं वो हो सकता है एक्सेस ना कर पाएँ इस समय, बट हमारी सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि उनको इंटरनेट सुविधा मिल सके जिससे सारे लोग अच्छे से इंटरनेट एक्सेस कर सकें. क्योंकि इस समय लॉकडाउन के समय जब हमारा सब आवागमन बंद है, आपकी एकेडमिक काउंसलिंग भी इस समय बाधित है, तो हमारा एक ही माध्यम है जिससे हम कनेक्ट हो सकते हैं, वो है इंटरनेट. तो इंटरनेट का हम कंस्ट्रक्टिव यूज़ करके और हम अच्छे से अपना, इस समय आपके पास बहुत अच्छा समय है जिससे आप अपना लर्निंग मटेरियल को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं और उसमें आप एडिशंस कर सकते हैं, राइट. सो इसमें हमारा जो मटेरियल जो है वो एक हमारे अभी सब सर्विसेज बाधित हैं, अभी आपको हार्ड कॉपी नहीं मिल पाएगी. तो इसी वजह से हम कह रहे हैं कि आप ई ज्ञान कोर्स से एक्सेस करें, प्लस हमारा जो ई कंटेंट ऐप है उसको आप डाउनलोड करें, राइट. तो जब जैसे ही सर्विसेज रिज्यूम होंगी आपको हार्ड कॉपी मिलेगी, पर
फ़िलहाल उसके लिए जब तक आप अपना अपना आप अपना पढ़ाई कर सकते हैं सॉफ्ट कॉपी की मदद से। कुछ हमारे विद्यार्थियों ने सॉफ्ट कॉपी की ही सिर्फ उन्होंने मांगा होगा, तो उनको 15% का छूट भी अपने फ़ीस में मिलती है। तो एक ये भी है, उनको हार्ड कॉपी नहीं मिलेगी बिकॉज़ हमारे पास कुछ एक ईमेल्स भी आए हैं कि ऑफ कोर्स पहले वाले कार्यक्रम से रिलेटेड कि हमने ई कॉपी मांगी थी, बट हार्ड कॉपी भी हमें चाहिए, हार्ड कॉपी। पर एक बार क्योंकि वो सुविधा मिल गई जिसमें हमें 15% वेव ऑफ हो गया, तो फिर आपको हार्ड कॉपी नहीं मिलेगी। सो ये आप एक बात ध्यान रखिएगा। साइकोलॉजी पाठ्यक्रम में हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट एक कंपोनेंट है प्रैक्टिकल का अथवा ट्यूटोरियल। जो हमारे जो कोर कोर्सेज़ हैं साइकोलॉजी प्रोग्राम में 14 कोर कोर्सेज़ हैं, बाद में हम अभी देखते हैं डिटेल में। 14 कोर कोर्सेज़ में जो कि स्प्रेड है 6 सेमेस्टर में, राइट। 6 सेमेस्टर में मतलब 3 साल में ये डिवाइडेड है। हर एक कोर्स में या तो प्रैक्टिकल है या ट्यूटोरियल है, इसका आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। 6 क्रेडिट का कोर्स है जिसमें 4 क्रेडिट तो थ्योरी कॉम्पोनेंट होता है और 2 क्रेडिट का या तो ट्यूटोरियल होगा या फिर प्रैक्टिकल होगा। इन सारे आपके जो 14 कोर कोर्सेज़ हैं, हम और कोर्सेज़ की बात नहीं कर रहे हैं जैसे कि डिसिप्लिन स्पेसिफिक है या आपका एबिलिटी इन्हांसमेंट या आपका जेनेरिक है या स्किल बेस्ड है। कई कैटेगरीज़ के कोर्स आपने देखा होगा और शायद आप कंफ्यूज भी हो रहे होंगे, तो अभी वील जस्ट टॉक अबाउट इट। तो उनमें प्रैक्टिकल या ट्यूटोरियल कंपोनेंट नहीं है, इट इज़ ओनली देयर इन द कोर कोर्सेज। असाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है एंड वी आर गेटिंग लॉट मेनी क्वेरीज रिलेटेड टू द असाइनमेंट पार्ट। असाइनमेंट हमारा एक जो हमारा हर कोर्स में एक असाइनमेंट होता है, राइट। जैसे कि हमने आपको बताया कि 4 क्रेडिट का अगर थ्योरी है तो उसमें असाइनमेंट होगा। कुछ कोर्सेज जो 6 क्रेडिट के हैं, फॉर एग्जांपल जेनेरिक हो गया, राइट, उसमें आपको एक असाइनमेंट होगा। मतलब जैसे पार्ट ए बी सी करके हो सकता है, उसमें वो डिपेंड करता है किस टाइप से वो फ्रेम किया गया है। असाइनमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसका वेटेज 30% है हमारे कंटिन्यूस एवैल्यूएशन में। एक असाइनमेंट होता है और एक टर्म एंड एग्जामिनेशन। दिस इज़ द पैटर्न ऑफ इवैल्यूएशन इन इग्नू। सो इसका हमारा 30% वेटेज है असाइनमेंट का। असाइनमेंट आप जब तक जमा नहीं करेंगे आप एग्ज़ाम नहीं लिख सकते हैं, पर इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। आप जैसे कि जब भी आपने असाइनमेंट जमा कर दिया उसके बाद वाले साइकिल का आप एग्ज़ाम ले सकते हैं, राइट। बहुत लोगों ने ये एक, अगर आप अपने प्रोग्राम गाइड को केयरफुली अगर आप पढ़ें तो हमने ये स्पष्ट करके उसमें लिखा है कि शुरुआत की एडमिशन साइकिल्स में हमारा जो इवैल्यूएशन का जो पैटर्न है वो एनुअल सिस्टम होगा, ना कि सेमेस्टर सिस्टम, राइट। बहुत क्वेरीज आई हैं इसके बारे में, तो यहाँ पे हम आपका थोड़ा ध्यान इसमें देना चाहते हैं कि ये नो डाउट द पैटर्न, द स्कीम ऑफ जो आपका जो प्रोग्राम स्ट्रक्चर है, जो स्कीम ऑफ स्टडी है, ये आपका 6 मंथली ही है। कोर्सेज जो आपको ऑफर करे जाएंगे वो 6 मंथली ही रहेंगे, राइट। बट जो एग्ज़ाम आपको देना है वो आपको एनुअल सिस्टम में देना है। जनवरी में आपने एनरोल किया, आपके पास BPCC 101 और 102 आपको पहले 6 महीने में दिए जाते हैं, दैट इज़ अपलोड कर दिए जाते हैं। जब जुलाई से जब दूसरा सेमेस्टर स्टार्ट होगा तो 103, 104 प्लस एक जेनरिक आपको मिल जाएगा। एबिलिटी एनहांसमेंट भी है जो कि कंपलसरी है, सिमिलरली इन द फर्स्ट सेमेस्टर। तो ये फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर की बात हो गई। एग्ज़ाम आप दिसंबर 2020 में ही लिखेंगे, राइट। ये नहीं कि आप जून में लिख रहे हैं। इसीलिए बहुत लोगों ने ये कहा कि हमने एग्ज़ाम फॉर्म भरने की कोशिश करी पर उसमें वो कोर्सेज रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल नहीं रिफ्लेक्ट होंगे। आपके जब दिसंबर वाले एग्ज़ाम फॉर्म जब भरे जाएंगे तब उसमें ये आपके BPCC 101, 102, फिर आपका BSOG 171 जो आपने ऑप्ट किया है, तो ये रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट होंगे। आपको जो इनमें से जिसको आपको ये लगता है कि हमने इन कोर्सेज़ की तैयारी कर ली है, आप उनका एग्ज़ाम फीस जमा करिए जो कि 150 रुपये है और एग्ज़ाम आराम से लिखिए। ये भी आप कर सकते हैं कि आपने असाइनमेंट्स, कोई आपको एकदम एंग्शियस होने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात,
असाइनमेंट्स आप ऐसा कर सकते हैं कि आपने जो भी, क्योंकि 3 कोर्सेज आपके, लगभग 3 से 4 कोर्सेज आपके फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, 4 कोर्सेज आपके सेकंड सेमेस्टर में हैं, जिसमें हम आपका कोर कोर्सेज और एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स और जेनरिक हम सब मिला के बात कर रहे हैं। तो ये मतलब आप जो इन सब का, जैसे आपके टोटल 8 कोर्सेज हो जाते हैं, आप चाहें तो 8 के असाइनमेंट जमा कर सकते हैं, चाहें तो 2 या 3 के जमा कर सकते हैं। उन्हीं के आप एग्ज़ाम आप लिख लीजिए दिसंबर एग्ज़ाम में। चाहें तो आप सारे असाइनमेंट दे दीजिए, पर आप सिर्फ 2-3 एग्ज़ाम लिखिए। वो उसकी कोई, वो आपका एक, वो उसमें कोई राइडर नहीं है, राइट। सो असाइनमेंट जो है वो आपको चेक करना पड़ेगा, वो आपका अपलोड हो जाता है, राइट। आपका जहाँ पे स्टूडेंट जोन है उसमें आप डाउनलोड सेक्शन में देखिएगा, वहाँ पे आपका अपलोड हो जाता है। इस समय अभी हमने अपने ऑनर्स का अभी अपलोड नहीं हुआ है, बिल्कुल 2-4 दिन में आप थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए, बिल्कुल अपलोड हो जाएगा। तो आपके सारे जो भी आपको उसमें जो कोर्सेज़ के जो असाइनमेंट आपको करने हैं, उन सब का असाइनमेंट आपको वहाँ पे मिल जाएगा, राइट। अब असाइनमेंट आपने लिख लिया, क्योंकि अभी इस समय जो सर्विसेज हैं, आप सेंटर में जाके आप जमा नहीं कर सकते हैं, तो यूनिवर्सिटी ने एक प्रावधान किया है कि आप उसको स्कैन करके और आप उसको अपलोड कर सकते हैं। बट दिस इज़ ऑल्सो नॉट कंपल्सरी, ये क्योंकि आप देखिए आपके पास ये सहूलियत है कि नहीं, राइट। तो अगर ये सहूलियत है तो आप कर लीजिए, आपको इसमें परेशान होने की बात नहीं है। वो अभी आपके पास पर्याप्त समय है। ये आपका एक तो अभी जैसे कि जिनको जून में एग्ज़ाम देना था या देना है, तो उनके लिए यूनिवर्सिटी ने अपनी डेट भी एक्सटेंड करी है। उसी तरीके से जो दिसंबर में एग्ज़ाम होगा उसके लिए 30 सितंबर होती है। तो आपके पास पर्याप्त समय है, इसमें परेशान होने की कोई भी बात नहीं है, राइट। गो स्टेप बाय स्टेप, रीड द मटेरियल, ट्राई टू कॉम्प्रिहेंड इट। अपने नोट्स बना लीजिए अच्छे से, क्योंकि आपको थोड़ा सा लिखने का एक इस समय आपको लिखने की जो स्किल है वो आप बहुत अच्छे से डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि अभी आप लोग 10+2 करके आए हैं, 12th पास करके आए हैं, तो वहाँ पे बहुत छोटे छोटे हम जवाब देते हैं सवालों का। यहाँ पे हो सकता है आपसे कहा जाए कि 500 शब्द में लिखिए, 1000 शब्द में लिखिए। डिफरेंट कोर्सेज का डिफरेंट पैटर्न है, तो वो एक आप आंसर राइटिंग स्किल आप इस समय एकदम अच्छे से डेवलप कर सकते हैं, आप उस पर ध्यान दीजिए। असाइनमेंट का कोई रीइवैल्यूएशन नहीं होता है, और ये अपने ही हाथ से लिखिए, आप टाइप मत करिए। हाथ से लिख के थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस भी रहेगी, क्योंकि आजकल के टाइम में आप देख रहे हैं हर चीज़ ऑनलाइन है टाइपिंग से, तो इससे आपका मतलब अच्छे से आप का दिमाग भी काम करेगा और लिखने की शैली भी विकसित होगी। तो इससे आप अगर आप लिखते हैं खुद अपने हाथ से, तो इट इज़ बेटर। एंड इसीलिए यूनिवर्सिटी ने ये ज़ोर इसी बात पे दिया है कि दे शुड बी हैंड रिटन। रीवैल्यूएशन इसमें नहीं है। एक बार जब आप जमा कर देते हैं असाइनमेंट, तो ये वापस भी लिए जाते हैं असाइनमेंट अपने स्टडी सेंटर से। तो अभी तो क्योंकि अगर ये जैसे अगर आप अपलोड कर रहे हैं तो आपको ये वापस भी आएंगे कमेंट्स के साथ। तो कोशिश करके जब आप इम्तिहान दें उसके पहले ये वापस अगर आप ले लें, तो क्योंकि इसमें जब हम देखते हैं कि काउंसलर ने कुछ कमेंट्स लिखे हैं, तो उसके हिसाब से आप अपने थ्योरी एग्ज़ाम में इम्प्रूवमेंट भी कर सकते हैं। कहाँ पे क्या लैग हुआ है, कहाँ पे हमें क्या ऐड करना है, कहाँ पे क्या चीज़ हमें हटानी है। और ध्यान रहे कि ये आपको हूबहू वैसे ही जैसे हमने अपने मटेरियल में दिया है वैसे आपको कॉपी नहीं करना है। प्रयास करिए कि आप अपने शब्दों में इसको अच्छे से लिख सकें, राइट। जो सवाल है उसको आप पढ़ें अच्छे से और वही आप आंसर करें। ऐसा नहीं कि आप इधर की उधर कहानी आप लिख रहे हैं, पर जो पूछा गया है वो मिसिंग हो गया है उसमें से। ये आपका असाइनमेंट में भी लागू होता है, ये आपके टर्म एंड एग्ज़ाम में भी लागू होता है, राइट। इसीलिए अक्सर हमें काफ़ी मतलब हमें दिक्कत हो जाती है कि इवैल्यूएटर ने कैसे मार्क कराए, हम तो बहुत ब्रिलियंट रहे हैं, हम तो बहुत अच्छा लिखते हैं। तो कभी थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करिए कि आप कैसे लिख रहे हैं, राइट। इसीलिए हमने ये असाइनमेंट में एक ये प्रावधान किया है कि ट्यूटर आपका जो काउंसलर है वो मार्क करके आपको असाइनमेंट देता है। दिस इज़ फॉर योर बेनिफिट ओनली।
अब हम टर्म एंड एग्ज़ाम पे आते हैं। टर्म एंड एग्ज़ाम जैसे कि हम आपको बता भी चुके हैं, आपका दिसंबर 2020 में होगा। उसके बाद मान लीजिए जैसे आप कुछ एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं कुछ कोर्सेज़ का, तो आप भले जून 21 में दे सकते हैं, पर थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर का अगेन आप दिसंबर 21 में ही दे सकते हैं, वो आप ध्यान रहे। ऐसा नहीं है कि आप थर्ड सेमेस्टर का भी आप जून 21 में देना चाहें, ऐसा प्रावधान अभी नहीं है। हमने आपको इनिशियली ये बताया कि वी आर फॉलोइंग एन एनुअल सिस्टम इन द इनिशियल साइकिल्स, तो इसका आप ध्यान रखिए। हर आप 6 महीने पे वैसे आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, प्रोवाइडेड वो साइकिल कंप्लीट हो जाए, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ये आप थोड़ा सा जब आप फॉर्म भरें तो ये आपको अपने लेवल पे सतर्कता मतलब ये देखनी होगी। तो ये टर्म एंड की आपकी डेट शीट आ जाती है, वेबसाइट पे अपलोड हो जाती है, रीजनल सेंटर की वेबसाइट पे अपलोड हो जाती है। तो ये आप देख लीजिएगा कि आपके सारे इसमें कोर्सेज़ हैं कि नहीं हैं। और जहाँ तक इसमें क्लैश की बात है, तो एक सेशन में आपके मतलब फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के कोर्सेज़ कभी कभी क्लैश भी कर जाते हैं, पर उसको हम क्लैश नहीं कहते हैं। आपका सेम सेमेस्टर का जो कोर्स है वो सिर्फ क्लैश नहीं करना चाहिए उस साल। पर मान लीजिए अगर आप दिसंबर 20 का एग्ज़ाम आप जून 21 में देना चाहते हैं, या फॉर एग्ज़ाम्पल जून 21 में क्लैश नहीं करेगा, हम कह रहे हैं कि आप दिसंबर 21 में देना चाहते हैं, राइट, एक साल बाद, तो कहीं ऐसा ना हो कि फर्स्ट या सेकेंड सेमेस्टर का जो छूटा हुआ कोर्स है वो आपका थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर के साथ क्लैश कर रहा है सेम सेशन में। पर हम उसको क्लैश, यूनिवर्सिटी उसको क्लैश नहीं मानती है। मॉर्निंग इवनिंग सेशन हो सकता है, सेम सेशन भी हो सकता है, तो उसमें आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, उसमें से आपको एक सेलेक्ट करना पड़ेगा, राइट। अगर आप जिस प्रक्रिया में, जैसे कि फर्स्ट ईयर का आप फर्स्ट ईयर में दे दें, सेकेंड ईयर का आप सेकेंड ईयर में, और थर्ड ईयर का थर्ड ईयर में आप देते चले गए, तो क्लैश नहीं होते हैं। पर जहाँ पे वो थोड़ा सा आप आगे मतलब ये थोड़ा सा जैसे कोर्सेज लेफ़्ट ओवर होते जाते हैं, बट हाँ, इसमें हम आपको सलाह देंगे जैसे जून में अगर आपने कवर कर लिया तो दिसंबर में क्लैश होने की संभावना कम होती है। तो वो एक आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, देन बिकॉज इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट एज अ लर्नर what to pick and what to forgo. So that is आपका वो प्रेरोगेटिव है, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। देन आपका रीवैल्यूएशन टर्म एंड एग्ज़ाम में होता है, जैसे कि असाइनमेंट में नहीं होता पर टर्म एंड एग्ज़ाम में होता है। वी हैव गॉट थ्योरी, प्रैक्टिकल एंड ट्यूटोरियल इन साइकोलॉजी कोर्सेज। तो थ्योरी का टर्म एंड एग्ज़ाम होगा, प्रैक्टिकल जो कि 2 क्रेडिट का है उसका भी टर्म एंड एग्ज़ाम होता है आपको। इसीलिए जो हमारे जो साइकोलॉजी के जो स्टडी सेंटर्स हैं वो उसमें लैब होती है, वही कॉलेजेस हैं जिसमें लैब की व्यवस्था की गई है या लैब है, दीज आर कन्वेंशनल कॉलेजेस, राइट। तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल करना है 2 क्रेडिट का, वो भी आपको सारे जो कोर्स मटेरियल उसमें देखिए हमने सारा आपको डिटेल दे रखा है, कौन से प्रैक्टिकल आपको करने हैं, कौन सा एक्सपेरिमेंट करना है, कौन सा टेस्ट करना है, वो आप उसको पढ़िए। उसको वो आपको अपने एकेडमिक काउंसलर की निगरानी में ही करना होगा, और उसमें आपको फाइल बनानी पड़ती है जिसको आपको अपने काउंसलर से इवैल्यूएट कराना पड़ेगा। फिर एक दिन ऐसा आएगा जब आपको इसका इम्तिहान देना होगा। ध्यान ये रखिएगा कि जो प्रैक्टिकल का जो डेट है वो आपकी डेट शीट में रिफ्लेक्ट नहीं होगा, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आपके थ्योरी कोर्सेज का जो डेट है वो रिफ्लेक्ट होता है, प्रैक्टिकल का डेट नहीं रिफ्लेक्ट होगा। तो ये आपको निरंतर अपने स्टडी सेंटर के, रीजनल सेंटर के कांटेक्ट में रहना है कि आपका प्रैक्टिकल कब कराया जाए। हमने एक डेट रेंज दे रखी है जब स्टडी सेंटर्स को कराना होता है, तो उनको भली भांति से उनको पता है, क्योंकि हमारे पुराने प्रोग्राम्स में भी प्रैक्टिकल है, उसी तरीके से ये प्रक्रिया चलती रहेगी, ये कोई डिफरेंट नहीं है। सिर्फ ये डिफरेंट है कि अब प्रैक्टिकल एक उसका हिस्सा बन गया है, एक बड़े कोर्स का हिस्सा है। अगर हम इसके पहले के कोर्सेज से कंपेयर करें जहाँ पे ये इंडिपेंडेंट कोर्सेज थे, अगर अब हम कंपेयर करें चाहे जनरल प्रोग्राम हो चाहे ऑनर्स प्रोग्राम हो, ये थ्योरी का एक हिस्सा है। 4 + 2 = 6, जिसमें 2 आपका प्रैक्टिकल है या ट्यूटोरियल है,
राइट। तो ये प्रैक्टिकल आपका डेट शीट में रिफ्लेक्ट नहीं होगा, और आपको जैसे आपको करना है वो हमने अच्छे से दे, इवैल्यूएशन सिस्टम भी हमने दे रखा है कि कैसे होगा। तो जैसे कि बहुत लोग हमारे पास क्वेरी आई है कि अभी हमारे पास BPCC 101 का प्रैक्टिकल नहीं हुआ है। कोई बात नहीं, अभी हमारे पास समय है। जैसे स्थिति सही होती है आपको ये स्टडी सेंटर पे ही करना होगा। तो होपफुली जैसे जुलाई के बाद से, अगस्त से सब चीज़ें सब बिल्कुल तो नॉर्मल नहीं, बट जैसे भी समवॉट नॉर्मल होती हैं वैसे ही एक प्रोग्राम शेड्यूल बन जाएगा जो कि स्टूडेंट्स तक भेजा जाएगा, और आपको आके वहाँ पे करना होगा, क्योंकि ये ऑनलाइन मोड में ये संभव नहीं है कि प्रैक्टिकल हो सके। तो इस वजह से ये अब ऑफलाइन ही किया जाएगा। ट्यूटोरियल जो है, जहाँ पे प्रैक्टिकल नहीं है वहाँ पे 2 क्रेडिट का हमारा ट्यूटोरियल है। ट्यूटोरियल एक एक्टिविटी बेस्ड एक्सरसाइज होगी जो कि हमने असाइनमेंट में ही इंक्लूड किया है। मतलब जैसे कि पार्ट ए अगर असाइनमेंट है तो पार्ट बी उसका ट्यूटोरियल होगा। तो उसी में मतलब जैसे जब हम अपलोड करेंगे असाइनमेंट तो उसी में ट्यूटोरियल की एक्टिविटी भी सम्मिलित होगी। तो वो आप उसके लिए भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, वो उसी में होगा। उसको आप पढ़ के अपने हिसाब से करिएगा, उसका पर इवैल्यूएशन अलग होगा क्योंकि वो 2 क्रेडिट का है, राइट। असाइनमेंट आपका थ्योरी कंपोनेंट का हिस्सा है, ये आप ध्यान रखिए। ट्यूटोरियल एक 2 क्रेडिट का अलग है, पर आपके सुविधा के लिए हमने आपके सुविधा के लिए और काउंसलर्स के अपने सुविधा के लिए उसी में ही हमने उसको मिला दिया है। मतलब पार्ट्स अलग हैं पर यह है कि इकट्ठे रहेगा तो आपको पता है कि हमें क्या करना होगा, राइट। एक बात यहाँ पे ये ध्यान रखिए, जो कोर्स कोड्स हैं कहीं पर भी किसी भी डॉक्यूमेंट में किसी भी फॉर्म में जब आप भरते हैं तो बहुत ही ध्यान से आपको अपने कोर्स कोड्स भरने होंगे। बिल्कुल ध्यान से भरिएगा, क्योंकि अगर आपने थोड़ा बहुत मतलब क्योंकि सिर्फ शब्द अल्फ़ाबेट्स का हेरा फेरी है, राइट। तो वो अगर आपने ऊपर नीचे कर दिया तो वो डिफरेंट उसका मीनिंग निकल जाएगा। तो जो आपके पाठ्यक्रम में जो हमने प्रोग्राम गाइड में जैसे हमने जो कोर्सेज सम्मिलित किए हैं, एक बार उनको कोड आप अच्छे से देख लें, अंडरलाइन कर लें, और जब आप कोई भी फॉर्म भरें, कुछ भी आप जहाँ पे भी ज़रूरत हो तो वहाँ पे उस हिसाब से आप वो कोर्स कोड्स को भरिए। अभी हम ये तो हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं कि जून और दिसंबर में वैसे 6 महीने पे हमारे यहाँ एग्ज़ाम होता है, पर अभी जनवरी सेशन के जो हमारे विद्यार्थी हैं वो दिसंबर में ही एग्ज़ाम देंगे। अब आपको ये लग रहा होगा कि क्रेडिट सिस्टम क्या होता है। एक क्रेडिट हमारा 30 स्टडी आवर्स कहलाता है, तो आपका 6 क्रेडिट का है तो 180, और इसमें हमारा सारा जो भी लर्निंग से रिलेटेड हमारी जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि पढ़ना, उसको समझना, हम ऑडियो वीडियो प्रोग्राम्स हमारे जो होते हैं ये भी हमारे ई ज्ञान कोश पे अपलोडेड हैं। और जो काउंसलिंग सेशंस हो रहे हैं, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन हो, टेली कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी, जैसे ज्ञान दर्शन है, ज्ञान वाणी है, जो रेडियो काउंसलिंग, इंटरैक्टिव रेडियो काउंसलिंग होती है, इसमें भी समय समय पर हमारे साइकोलॉजी से रिलेटेड प्रोग्राम्स आते हैं। और असाइनमेंट्स, ये सारी जो लर्निंग से रिलेटेड जो हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं, दिस विल बी अ पार्ट ऑफ योर क्रेडिट। सो इसमें है ये हमारा इस तरीके से क्रेडिट सिस्टम है। और ये आपका जो नया जो ऑनर्स प्रोग्राम है, दिस इज़ एज पर द UGC CBCS, दैट इज़ अ चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, जो कि इस समय ऑल ओवर इंडिया फॉलो हो रहा है, राइट। तो पर इग्नू पहला नहीं, इग्नू हमेशा शुरुआत से ही क्रेडिट सिस्टम फॉलो कर रहा था। ये इग्नू के लिए नई बात नहीं है क्रेडिट सिस्टम। हमने बस इसको अपने थोड़े कोर्सेज को थोड़ा सा डिफरेंट किया है, जो कि UGC ने मतलब फॉर्मुलेट किया है और ऑफ़र किया है, तो उसी के हिसाब से हमने अपने प्रोग्राम को थोड़ा सा रीस्ट्रक्चर किया है। ये आपके जैसे जैसे हमारा प्रोग्राम डेवलप मतलब कोर्सेज और डेवलप होंगे, फैकल्टी मेंबर्स कोर्सेज और डेवलप करेंगे, कुछ जेनरिक या स्किल या एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्सेज इसमें ऐड होते रहेंगे। वो आपको पता चलता रहेगा, वेबसाइट पे इसका अपडेट आता रहेगा।
all the courses have different course codes, ये तो हमें पता है. Now this is the total आपका ये जो प्रोग्राम है इसका क्रेडिट्स है 148. एंड जैसे कि आप बार बार मेरे हमसे सुन रहे हैं कि कोर कोर्सेज, सो दीज आर द टाइप ऑफ कोर्सेज दैट आर इंक्लूडेड इन द प्रोग्राम. They are the core courses, then discipline specific courses. Discipline specific matlab they are related to psychology only. Then we have the ability enhancement courses. These are the compulsory courses in the first and the second semester. जो कोर कोर्सेज हैं वो आपके फर्स्ट ईयर से लेके थर्ड ईयर तक रहेंगे, दैट इज़ फर्स्ट टू सिक्स सेमेस्टर. डिसिप्लिन स्पेसिफिक आपका फिफ्थ एंड सिक्स सेमेस्टर में है, यानी कि आपके जो आपका जो लास्ट ईयर जो होगा थर्ड ईयर होगा उसमें स्किल एनहांसमेंट आपके थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर में 2 कोर्सेज रहेंगे. और जेनेरिक जो है आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ यानी कि फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर में रहेगा. टोटल 24 क्रेडिट्स का है. तो ये अगर आप इसको पूरा एडअप करें सो इट कम्स टू 148. सो दिस इज़ द स्कीम ऑफ द कोर्सेज. ये हमारे पास दीज आर द कोर्सेज दैट वी आर ऑफरिंग, जो कि आप देख सकते हैं BPCC 101 एंड 102. यहाँ पे आपके फर्स्ट सेमेस्टर के कोर्सेज हैं जो कि हम आपको बताना चाहेंगे. इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी इन इंग्लिश एंड हिंदी, दे आर ऑलरेडी अपलोडेड. इट हैज़ अ प्रैक्टिकल कॉम्पोनेंट 6+2 होगा यहाँ पे. बायो साइकोलॉजी 102 इंग्लिश अपलोड हो चुका है, हिंदी कुछ ही टाइम में अपलोड हो जाएगा. एंड वी आर वेरी सॉरी कि ये इसमें थोड़ा लेट हो गया, बट आई सजेस्ट कि हमारे लर्नर्स थोड़ा कोशिश करें जो फ़िलहाल के लिए अंग्रेज़ी माध्यम का जो है, इनफैक्ट उन लर्नर्स के लिए जिन्होंने हिंदी में ऑप्ट किया है, आई रिग्रेट द इनकन्वीनियंस कॉज्ड, बट फ़िलहाल के लिए वो इंग्लिश को रेफ़र कर सकते हैं. देन वी हैव इन द सेकेंड ईयर जुलाई के टाइम में आपका 103 और 104 जो है personality and individual differences and statistics and psychological research part 1, they will be uploaded. And 103 has a practical component, 104 has a tutorial component. Similarly, now we see आपके second year में थोड़ा मेहनत ज़्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि आपके पास 6 कोर्सेज हो जाएंगे कोर कोर्सेज. 3 आपके थर्ड सेमेस्टर में हैं, 3 आपके फोर्थ सेमेस्टर में हैं. तो ये थोड़ा सा आपके पास जो लोड है वर्कलोड वो थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ेगा. तो आप अपना स्कीम ऑफ स्टडी जो आपका अपना जो प्लान ऑफ एक्शन है उसको थोड़ा सा आपको डिसिप्लिन वे में करना पड़ेगा, बिकॉज यू हैव ऑप्टेड फॉर एन ऑनर्स प्रोग्राम. डेफिनेटली यहाँ पे आपके पास कोर्स कंटेंट ज़्यादा है, पढ़ने के लिए आपके पास कोर्सेज यहाँ पे ज़्यादा हैं एज वी कंपेयर इट टू द जनरल प्रोग्राम. सो बी रेडी फॉर दैट. मेहनत करने के लिए आप तैयार रहिए क्योंकि एज अ लर्नर आपका ये दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप थोड़ा सा इसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज साइकोलॉजी इज़ ऑल्सो लिटिल डिफरेंट फ्रॉम अदर डिसिप्लिन्स. Then we have 105 is your psychological research. Then psychological thought, कैसे psychology में various schools of thought का development हुआ है. This is there 106 in third year. Then we have social psychology in third year. Then again what we did in the second semester statistics. Part 2 will be here. ये आपका और advanced level का statistics है. In the fourth, developmental psychology we have in the fourth semester. Applied social psychology we have in the fourth semester. These all details are there in the program guide if you see. But just for your reference, I got them here. And if you see the courses, either they have practical or they have tutorial, right? So ये आपको थोड़ा सा ensure करना पड़ेगा कि हम इसको कैसे हमें ट्यूटोरियल की एक्टिविटी कैसे करनी है, प्रैक्टिकल के लिए हमें कैसे कनेक्ट करना है अपने स्टडी सेंटर से. दैट इज़ व्हाई आई एम सजेस्टिंग कि इफ़ यू कैन फॉर्म ग्रुप्स, पीयर ग्रुप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये अगर आप बना लें यू एंड अगर विद दी हेल्प ऑफ दी काउंसलर ऑल्सो, अगर काउंसलर परमिट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे काउंसलर्स ने इनिशिएटिव लिया है ग्रुप बनाने का. आई नो ऑफ कोर्स दैट हैज़ हैपेंड इन दिल्ली. सो अगर अपने लेवल पे अगर आप थोड़ा एक्सप्लोर कर लीजिए, इफ दैट कैन हैपन, दैट विल बी रियली गुड. So then we have in the 5th and 6th semester we have understanding psychological disorders 111 and organizational behavior 112, and in the 4th semester then we have how to deal with the psychological disorders, mainly therapies will be covered, and then we have counseling psychology 114.
In the initial part, I told you about the faculty members in a discipline. So these courses are being coordinated by different faculty members. Few are being coordinated by Professor Swati, few are being coordinated by Professor Suhas, then by Dr. Smita and myself. So this is all the faculty members are contributing, so that, and they're ensuring that you have a quality course content, and we are ensuring that, right? So these are about the core courses. Now we have the ability enhancement courses that has to be covered in the first semester and the second semester. These are about your environmental studies in the first semester, and the course code is BEVAE 181, and then we have an option of English communication or Hindi bhasha or some Prussian. तो ये इन दोनों में से आपको सेकेंड सेमेस्टर में ऑप्ट करना है. In all we have, this is for 8 credits. Then we come on to the generic electives. यहाँ पे आपसे I would like to share something. Generic electives, the idea of offering generic elective is that we have an idea about in the knowledge from different disciplines, interdisciplinarity जिसको हम कहते हैं. So for example, we have opted BSOG. Now this is a course being offered by the sociology faculty. The course name is Indian Society, Images and Realities, Bhartiya Samaj, Chhaviyan aur Vastaviktaएं. Now if you see, as I told you that I'll just take a minute here, and I'm referring to the E-Gyan Kosh. E-Gyan Kosh में हमारा soft copy available है of the courses. Now what has happened? When you go on to E-Gyan Kosh, there is a folder BA Psychology Honors. You click onto that. You will be having the core courses, BPCC 101, you have 102, you have the program guide in English and Hindi. By mistake, there is another course uploaded, that is a BPCG 171, right? But we are, as a learner, you have to be opting this course, that is BSOG 171, Indian Society, Images and Realities. So this error has been detected and it will be taken care of in a day or two. This course will be uploaded in our folder, but till then, I suggest you to go to, if you want to have a look at the course and you want to read the study material or you want to download, you can go to the folder of a BA Sociology Honors where this course is uploaded, right? So you can download it from there and you can start reading. This is a temporary arrangement, so because the correct course is not uploaded in a folder, and in a day or two this will be sorted out. So this is one of the courses, the generic electives that you will have to complete in the first year. So accordingly, the assignment also you will have to prepare for this course and the term end exam also, right? So now the second course that you will have to complete in the second semester is Gender Sensitization, Society and Culture. This is a course that is being developed by the Gender Studies and Development School. And see, this is the beauty of this program, that you will be knowing so many aspects from different areas, from different disciplines. So this is in fact enriching the program, because from a psychological perspective you can connect with the other disciplines also. So this is in the second semester. In the third semester, again there is a course Rethinking Development. This is again developed by the sociology faculty. This will be in third semester. And then from the public administration faculty, there is a course Sustainable Development. So as of now we have this in the basket. These are the 4 generic electives that you will have to complete in the first 2 years. All right, so accordingly you start, and you have to prepare the assignments, and accordingly you have to attend the counseling sessions also. Whenever there is a counseling session for BSOG 171, you can attend that, right?
Then we have the skill enhancement. These are the courses in the third and fourth semester. We have 183. Now these are from anthropology discipline that we have opted: tourism, anthropology, and public health and epidemiology. Now this is the skill enhancement courses that I was referring to. Now when I just want to share something with you is about the academic counseling sessions. See, the academic counseling sessions are as such not compulsory. The learner, in the initial slide I just showed you the role of the learner support center. Now these are the colleges from where you will be getting help from the counselors. The counseling sessions are organized for a particular course. They are organized, of course. As a faculty from psychology, and since you might be new to the area, I would suggest that you should attend the counseling sessions, right? You should attend the counseling sessions. Being it is a discipline is little difficult in the sense that understanding is required for the discipline. So in fact, if you get guidance from the study center, we are of course there, the faculty members are of course there. You can reach the program coordinator, you can reach the course coordinator, not a problem. But you are actually the near to your place will be the study center and the academic counselors. So as a faculty, I suggest that you should be going to these counseling sessions. So for example, if you have a 4-credit theory course, theory component, then probably you will be having 4 counseling sessions of maybe 2.5 hours, right? So what you do is all the course, the entire course will be not covered. What your plan of action should be in a way that you go through the material wherever you are not able to comprehend or wherever you are not able to understand, you make a note, you make important points where you want to clarify or you want doubt clearing sessions with the counselor. That is one. You should also form your own group with your batchmates, with your friends, where you can resolve certain issues, related to the content and so on. If not, then of course you can reach to us wherever we can help you out, we'll help you out, of course, not a problem. But this is the way, I'm just suggesting like you should be attending the counseling sessions for psychology. Number 2, for the practical sessions, the counseling sessions are mandatory. Right. So that is, for example, you have a 2-credit practical component where you will be having 2 classes at least, and 1 class will be of 3 hours. So here the academic counselor will be, explaining about the test, the experiment, and how you have to conduct the test, the experiment, and how you are going to administer the test. That will be क्लियर टू यू, एंड वहाँ पे आपको उसी समय आपको टेस्ट या एक्सपेरिमेंट करना भी होगा एक दूसरे के ऊपर. एग्जाम में आपको एक सब्जेक्ट लेके आना होगा, बट यहाँ पे आपको एक दूसरे के ऊपर ही करना होगा. ठीक है, तो ये वाले जो सेशंस हैं आपके, जो प्रैक्टिकल के जो सेशंस हैं, ये मैंडेटरी हैं. अगर आप इवैल्यूएशन मेथोडोलॉजी देखें, उसमें अटेंडेंस का भी रोल होता है. तो अगर आप सारे क्लासेस में गए तो आपको फुल ऑन फुल मिले, क्योंकि आप फिर आपको, क्योंकि फाइल भी बनानी है. अगर आप कंडक्ट नहीं करेंगे कोई एक्सपेरिमेंट या आपको पता नहीं है कि वो टेस्ट कैसे किया जाएगा, तो आप फाइल कैसे बनाएंगे? क्योंकि फाइल फिर एंड में ये होता है कि फिर आप कॉपी करेंगे. कॉपी करने से क्या होगा? एग्जाम में अगर वही प्रैक्टिकल या टेस्ट आ गया या एक्सपेरिमेंट आ गया तो आप क्या करेंगे? अगर आप बदलते हैं वहाँ पे तो मार्क्स भी कट होते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा. तो इसलिए आपको, आपका मतलब अब कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो तो बात अलग है, बट आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि आप क्लासेस जाइए और ये प्रैक्टिकल्स, जो टेस्ट और एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, वो आप कंडक्ट करिए. करेक्ट? तो ये इससे आपको पता भी चलेगा कि कैसे क्या है. फिर क्योंकि इसमें वाइवा भी है, माइंड यू, कि इसमें जो आपका जो प्रैक्टिकल कॉम्पोनेंट है, दीज आर ऑल वाइवा वोसी बेस्ड. तो वाइवा वोसी में आपका
ये जो वाइवा वोसी में आपका वहाँ पे प्रैक्टिकल्स होंगे, सॉरी आप प्रैक्टिकल रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे जो कि एक्सटर्नल एग्जामिनर पूछेंगे, राइट? I think I have missed here one thing about the discipline specific electives. There was a query also कि हमारे जो honors में हमारे पास internship है या dissertation है. So in the last semester, that is in the 6th semester, in the 6 months course, you also have a dissertation. आपको research छोटा सा एक mini research type का भी करना है. This is there in the, जो कि आपको अपने academic counselor के under करना होगा. This I just thought of sharing it with you. तो ये coming back to the practical session, आप कोशिश करके आप attend करिएगा, file बनाइएगा. You have to get it evaluated. आपको ये फाइल अपने एग्ज़ाम के दिन लेके आनी होगी, जिस पे क्योंकि इस फाइल पे भी मार्क्स हैं. इफ़ यू सी इन द इवैल्यूएशन मेथोडोलॉजी देयर आर सर्टेन मार्क्स गिवन टू द फाइल ऑल्सो. सो आपको जो काउंसलर है वो आपको हेल्प करेगा कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं. आप खुद भी आपस में एक दूसरे से, जो पीयर ग्रुप हो वैसे आप एक दूसरे से सवाल भी कर सकते हैं और मटेरियल पढ़ सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर आपसे कोई भी सवाल कर सकता है रिलेटेड to the practical that is you have done, that is to the test or experiment that you have conducted. और इसके अलावा भी कुछ मतलब थ्योरी से भी वो पूछ सकता है, कुछ भी रिलेटेड हो. मान लीजिए आपको कोई मेमोरी पे कोई आपको एक्सपेरिमेंट करना है या मोटिवेशन पे करना है, तो आपसे वाजिब सी बात है कि मान लीजिए एग्जामिनर ने मोटिवेशन की थ्योरीज कुछ पूछ ली, या मैस्लो का क्या नियम है ये वो पूछ लिया, या पर्सनालिटी की कोई थ्योरी पूछ ली. तो क्योंकि थ्योरी आप करके आए हैं ना, आपने पढ़ा तो है थ्योरी, तो ऐसा नहीं है कि वो आउट ऑफ द सिलेबस, वो आपसे वो है आपके सिलेबस में ही, राइट? तो आपको एक तरीके से थोड़ा प्रिपेयर होके जाना पड़ेगा. इसीलिए आई एम्फसाइज ऑन दिस कि कोशिश करके आप जो काउंसलिंग सेशंस हैं वो आप अटेंड करिए. जब भी रिज्यूम होते हैं, अभी अगर ऑनलाइन सेशंस चल रहे हैं तो उनका बी अ पार्ट ऑफ इट. कुछ अगर ओपन रिसोर्सेज से आपको मटेरियल मिल रहा है, यू एक्सेस दैट. हमारा मटेरियल है, आपस में आप अपने ग्रुप्स बना सकते हैं. यू कैन बी इन टच विद योर एकेडमिक काउंसलर्स, यू कैन बी इन टच विद अस, यू कैन कॉन्टैक्ट अस. सेकेंड इज़ हमारे ई ज्ञान कोश पे हमारे वीडियो मटेरियल भी है. दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट आई वॉन्ट टू शेयर विद यू. हमारे पास वीडियो मटेरियल भी है, वहाँ पे आप हमारे जो वीडियोज़ हैं वो आप देख सकते हैं. जैसे लर्निंग पे है, मोटिवेशन पे है, देयर आर मेनी वीडियोज़ दैट यू कैन एक्सेस एंड यू कैन सी. अपार्ट फ्रॉम दिस, हमारा जो पुराना जो कोर्स मटेरियल है, फॉर एग्जांपल जो बीडीपी के अंतर्गत आता था, जो दैट आई रेफर टू यू, फॉर एग्जांपल बीपीसी 001 जनरल साइकोलॉजी, वो भी आप अपने जनरल रीडिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं. दिस इज़ एन ओपन एक्सेस. ये आप बिल्कुल ई ज्ञान कोश पे है, आप बिल्कुल इसको पढ़ सकते हैं, राइट? उसी तरीके से जैसे जैसे आप देखेंगे हमारे पास काफ़ी सारे कोर्सेज हैं हमारे पुराने वाले बीए प्रोग्राम में, जिनका मटेरियल हमारे ई ज्ञान कोश पे है, वो बिल्कुल आपके इस प्रोग्राम में भी हेल्प करेगा. दो वी हैव डिज़ाइंड इट इन अ डिफरेंट वे, बट जो वो नॉलेज और इन्फॉर्मेशन उसमें है वो भी वो गलत नहीं है. We have revised it as per the latest what is going on in the discipline of psychology. So जो latest researches हैं या कुछ इस टाइप की जो चीज़ें हमने सोचा कि हमारे students के लिए helpful रहेंगी, we have tried to include that. So of course वो हमारा थोड़ा सा material, क्योंकि it was developed way back in 2010-11, तो वो material थोड़ा पुराना हो गया है, but you can always refer to that फॉर योर नॉलेज. सो आप एक बार ब्राउज करके आप देखिएगा कि हमारा जो पुराना जो मटेरियल है वहाँ पे आप उसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं और उसको आप कैसे यूज़ में ला सकते हैं, राइट? सो in the end, I would just share these email IDs. I have been receiving lot many emails on bapchsoss@ignou.ac.in. This is the email for especially that has been created for the honors, psychology honors students. And otherwise, if there is any problem, you can always access you can always write to me on monikmisra also at ignou.ac.in. I suggest that you regularly visit the university website www.ignou.ac.in
and the regional center website for regular updates. So this is very important, and you can also contact your course coordinators. For example, the course coordinators for the various programs, you can just see who the faculty is, and you can always be in connect with them. So with this, I wrap up this session, and I'm sure you will come up with various, whatever your queries are, you will come up with the various queries or any feedback with regard to the courses and the program. We would always welcome your suggestions and feedback, and I'll meet you in some other session. Thank you so much.